how many of you know about it? Personally, I have been wearing Hacktoberfest t-shirt from 2017, 17, 18, 19, 20, 21. 5 टी-शर्ट हर साल की पड़ी है मेरे पास और 22 में भी मैं लेने वाला हूँ. So that's gonna a bit motivating thing for you. हो सकता है कुछ लोग टी-शर्ट के लिए ज्वाइन किए हों, हो सकता है कुछ लोग सीखने के लिए ज्वाइन किए हों, बट दोनों चीजें होने वाली हैं, ठीक है? Okay, so hello world, kickstart with open source. Welcome everyone. That's the first slide that we have. Talking about myself, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था, मैं उन लोगों के बारे में सुनना नहीं पसंद करता था जिन्होंने कुछ नहीं उखाड़ रखा है. मैं बहुत गलत मेंटालिटी में था. But if someone is coming to you, just listen to that person. Make sure you're extracting something from that. Whenever I used to sit in any webinar or seminar, किसी भी चीज में बैठता था, I used to take a notepad with me every single time. And I used to note down a couple of good things that the person is carrying. हो सकता है उसकी पर्सनालिटी हो सकता है उसका बोलने का तरीका हो सकता है जो वो ज्ञान दे रहा है वो चीजें हो, ठीक है? हर एक सेशन में कुछ ना कुछ नया सीखने के मोटिव से मैं जाया करता था, and that's why I guess I am able to deliver a couple of good sessions as well. And if you basically want to do the same thing, just make sure there are no disturbances available around you. चिल तरीके से बैठो, अपना पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न है तो वो भी लेके बैठो, सारी चीजें करते हैं, ठीक है? आराम से बस थोड़ा सा फोकस चाहिए मुझे आपका, एंड देन थिंग्स आर गोइंग टू बी रियली गुड. सो आई एम मुकुल कुमार, ऑल्सो नोन एज मुकुल कोड. आप मुकुल कोड सर्च करोगे लिंक्डइन, ट्विटर एंड एवरीवेयर, यू विल बी एबल टू सी दैट. Whoever is joining is unmuted. Please make sure to mute yourself. It's gonna help us everyone. Okay, so मुकुल कोड के नाम से हर जगह पर मिल जाऊंगा. ट्विटर पे मैं एग्जिस्ट करता नहीं हूँ अभी, लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, और जो कुछ भी होता है वहाँ कहीं ना कहीं तो मुकुल कोड सर्च करोगे दिख ही जाऊंगा, ठीक है? Currently working at Amazon. It's been 1.5 years since I'm working at Amazon, and I'm like from your college only, Maharaja Surajmal Institute of Technology. 2017 to 2021 pass out हूँ. I did Google Summer of Code. I mentored for Google Summer of Code. I did Google Code in. I participated in FOSS Asia Code Heat. ब्ला 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 ब्ला, जितने भी फेमस मतलब ओपन सोर्स प्रोग्राम्स हैं, मोस्टली मैंने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन कर ही रखा है, ठीक है? एंड I was the person who started GDSC in our college as well. Now some great people are continuing that. Good to see that happening. Now moving onwards to our main topic, which is open source, which is Hacktoberfest, which is contributing to open source or something like that. And we'll be talking about these basic stuff only. What is open source? Why open source is important? How we can start contributing to open source, and its prerequisites. Prerequisites काफी जरूरी चीज है. What's Hacktoberfest? How you're going to get a T-shirt from Hacktoberfest, and the important open source programs you should aim for. Yeah, cool. ओपन सोर्स वगैरह ये सारी चीजें बेसिक हैं. टी-शर्ट, अगर आप टी-शर्ट के लिए आए हो तो ले लेना. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज दिस वन, व्हिच इज इम्पॉर्टेंट ओपन सोर्स प्रोग्राम्स. क्योंकि हर साल ये जो मंथ होता है, अक्टूबर अक्टूबर वाला जो मंथ होता है, यहाँ से आपकी ओपन सोर्स की जर्नी शुरू होती है. और आप कह सकते हो कि यार ये इनिशियल फेज है. इसके बाद में आपके पास लगातार ओपन सोर्स प्रोग्राम्स आते रहते हैं नेक्स्ट ईयर के मिड तक, ठीक है? So you have a great set of opportunities in front of you. You just have to settle down, learn things, and then implement all those things. But yeah, okay. So let's talk about what is open source. Open source, काफी नाम सुना होगा. यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं. बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ओपन सोर्स के ऊपर इतना ज्ञान पेड़ रखा है लेकिन आज तक कभी ये कमिट नहीं किया है. तो उस वजह से काफी सारी कंफ्यूजन आ जाती हैं. एंड टू समराइज दैट ओपन सोर्स थिंग इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ओपन सोर्स इज बेसिकली समथिंग, नॉट जस्ट अ सॉफ्टवेयर, समथिंग which is developed by the people for the people. That's it. मतलब ओपन सोर्स सबके लिए है. नॉर्मल लोग डेवलप करते हैं, नॉर्मल लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, कोई भी उसे यूज कर सकता है. बेसिक लाइसेंसिंग होती है उसके लिए, आपको कहीं पर पे नहीं करना पड़ता, कोई आपको पे नहीं कर रहा होता. दैट्स हाउ थिंग्स आर विद ओपन सोर्स. That is a bit demotivating factor as well, क्योंकि whenever we spend some time on something we want some great rewards, है ना? अपन लोग इंटर्नशिप में जाते हैं तो हम देखते हैं कि यार गूगल में इंटर्नशिप करनी है क्योंकि वहां पे 1 लाख का स्टाइपेंड होता है. एंड इफ यू स्पेंडिंग दैट अमाउंट of time into something else, you need some rewards. That's why
people get a bit demotivated around open source, but that's not the thing right now. There are a lot of great scenarios with open source as well, and open source is something which can get you referrals quite easily. Make like note these words. Okay, who are joining with unmuted, please mute yourself. ओके, बिफोर मूविंग ऑनवर्ड्स, ओपन सोर्स मैं थोड़ी सी हाइप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली, मैं बताऊं तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ओपन सोर्स से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। मैं बहुत रिज्यूमे रिव्यू करता हूँ, यूट्यूब पर भी करता हूँ, ऑफलाइन भी करता हूँ, रेफरेंस देता हूँ, तब भी रिज्यूमे वगैरह देखता हूँ। आई फेल्ट लाइक 90% ऑफ द रिज्यूमेज आर सेम सेम। कॉलेज में कुछ सीजीपी होगी, कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स, कपल ऑफ इंटर्नशिप, बेसिक इंटर्नशिप, नथिंग स्पेशल, नथिंग टू प्रूव कि यार मैं जबरदस्त बंदा हूँ, मैं अच्छा इंजीनियर बन सकता हूँ। There's nothing, no data points they have, right? 90% of those people, and the rest of 10%, they get referrals, they get into good companies, they work, and like they are the best people. And I want you to be the 1% of those 10%. Okay, and to become the 1% of those best 10%, you should have open source in your resume. Open source or ICPC or competitive coding ranks and number of questions that you have solved, or like there are a lot of things. Google have organized a lot of coding competitions. Facebook Hacker Cup is there, Microsoft Imagine Cup hackathons are there, Smart India hackathons are there. You should have something special, specific in your resume that those 90% people do not have. That is where open source kicks in, and that's why I got a lot of referrals when I was applying to internships in companies. And there was a company called Gojek. They just looked at my GitHub profile. उन्होंने मेरे open source contributions देखे, and they just found my number from somewhere and called me like, hey, we have an opening. चलो एक task भेजता हूँ, कल से आपकी interview process start करते हैं. And I was like, oh man, मतलब इतना ज़्यादा पे करती है वो company, इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बढ़िया वर्क कल्चर है वहां का, एंड दे आर अप्रोचिंग मी। ठीक है, एक टीयर 3 कॉलेज के बंदे को जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना कॉलेज प्लेसमेंट, कॉलेज में ना इंटर्नशिप के लिए कंपनी आती है, आई हैव नथिंग, एंड दे आर कॉलिंग मी ऑन द बेसिस ऑफ माय ओपन सोर्स एक्सपीरियंस ओनली। दैट्स व्हाई ओपन सोर्स इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, लोग ओपन सोर्स आप अपनी पूरी जिंदगी में करने वाले हो, फिर गोइंग टू बिकम एन इंजीनियर, ओपन सोर्स इज गोइंग टू स्टे विद यू फॉरएवर। आप पूरी जिंदगी भर ओपन सोर्स वाला कोड यूज कर रहे होगे, बट द थिंग हियर इज हाउ मच यू कंट्रीब्यूट टू दैट कोड, और आप ओपन सोर्स को अपने लाइफ के फेज में किस तरीके से यूज करते हो। फॉर यू, फॉर अ स्टूडेंट, फॉर अ नॉर्मल गाय, ओपन सोर्स गोना हेल्प यू टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। ठीक है, नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स टू ओपन सोर्स। ओपन सोर्स के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स होती हैं, we're gonna come to that. There are a couple of basic prerequisites. Prerequisites में हम देख लेते हैं कि आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। ठीक है, प्री रिक्विजिट्स इतना कुछ हैवी कुछ नहीं होता ओपन सोर्स के लिए। आपको कंट्रीब्यूशन करने के लिए, आपको अगर आपको कोडिंग भी नहीं आती ना, तब भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, लिख के ले लो। ठीक है, बट द थिंग हियर इज आप क्या चीज कंट्रीब्यूट करते हो सकता है आप डॉक्यूमेंटेशन पे कंट्रीब्यूट करो, डॉक्यूमेंटेशन यानी कि रिटन स्टफ। हो सकता है आप किसी और चीज पे कंट्रीब्यूट करो, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, इफ यू हैव कोडिंग स्किल्स यू विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू कोडिंग प्रोजेक्ट्स। और ओपन सोर्स के लिए क्या कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज आनी चाहिए कि यार सी प्लस प्लस आनी चाहिए, पाइथन आनी चाहिए? ना, दैट्स नॉट गोइंग टू बी द सिनेरियो। If you know C++, you can contribute to that project. If you know Python, you can do that. If you know web development, you can contribute to website. If you are an Android developer, कुछ भी आता है, you can find projects for that technology. You can contribute to that and learn a lot of things while contributing. That's how open source is. So you don't need any specific prerequisites, but there is still one prerequisite which is known as VCS. All like VCS, which stands for version control system. एक प्री रिक्विजिट है सिर्फ, सिंपल सी, उसे अपन लोग यहीं इसी सेशन के अंदर खत्म करेंगे और फिर आगे चलेंगे। ठीक है, सो VCS बेसिकली स्टैंड्स फॉर वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ये स्लाइड बहुत पुरानी है, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या लिखा है, मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, my words are going to be more important over here, just listen to them carefully. ये slides मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से नोट्स वगैरह बनाने की कोई नीड नहीं है। So let's talk about version control system, what a version control system, and how they are useful, how they are helpful to contribute in open source. तो ओपन सोर्स में क्या है यार, अपन लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं मैं हूँ, मेरा एक दोस्त है, मेरे दोस्त ने प्रोजेक्ट बना रखा है एक, उसके ऊपर वो काम कर रहा है, उसने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना रखा है, और मुझे उसके अंदर एक गलती दिखी एंड आई वांटेड टू फिक्स दैट मिस्टेक।
अब मैं उस मिस्टेक के लिए कोडिंग कर सकता हूँ, मुझे कोडिंग आती है, ठीक है, मैंने उसको फिक्स कर दिया गलती को, लेकिन अब मैं उस गलती को अपने दोस्त को कैसे सेंड करूँ? मैं उसे पेन ड्राइव में डाल के लेके जाऊँ क्या कि यार भाई पेन ड्राइव में कोड है, इसे एक बार रन करके देख, कॉपी पेस्ट कर दियो। या फिर मैं उसे गूगल ड्राइव पे पेस्ट करके भेजूँ, या क्या चीज़ कर सकता हूँ, या व्हाट्सऐप पे भेजूँ। इन सब में बहुत सारी दिक्कतें होने वाली हैं, है ना? तो पुराने ज़माने ये सब चीज़ें चलती भी थी, अलग-अलग मेथोडोलॉजीज़ थी, आप वो सब चीज़ें यूज़ करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम है, वीसीएस है, जो कि सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए है, कि आपके प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए, आपके वर्ज़न्स को मैनेज करने के लिए बेसिकली, ठीक है? तो अगर आप वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम को यूज़ करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस मिल जाती है चीज़ों की। जैसे मान लीजिए आपने प्रोजेक्ट मेंटेन करना है, प्रोजेक्ट छोड़ो, प्रोजेक्ट बहुत बड़ी चीज़ हो गई। आपने एक सी प्लस प्लस का सिंपल सा कोड लिखा, बाइनरी सर्च का। बाइनरी सर्च भी छोड़ो, एक नॉर्मल ट्रैवर्सल का कोड लिखा जो फॉर लूप चलाता है, एंड तक में एक वैल्यू ढूँढता है। आपने उस कोड को लिख दिया और उसको आपने सेव कर दिया, ठीक है? अब क्या है, आपको उसमें कुछ गलती दिखी और आप उस गलती को ठीक कर देते हो, फिर से सेव कर देते हो अपने कंप्यूटर के अंदर। 3-4 दिन बाद कुछ और गलती दिखती है, फिर सेव कर देते हो, फिर सेव कर देते हो। 1 हफ्ते बाद आपको याद आता है कि यार अब जो मैंने चेंज किए है ना, इससे 2-3 दिन पहले वाला जो चेंज था वो बेस्ट था। अब जो मेरे पास चेंज है ये गलत है। तो अब आप पुराने वाले वर्ज़न को कहाँ ढूँढोगे? आप अपने कंप्यूटर के अंदर नहीं ढूँढ सकते उसको, क्योंकि एक फ़ाइल के अंदर ही आप बिल्ड कर रहे थे। या तो आप ऐसे कर सकते हो, अपने कंप्यूटर के अंदर एक फ़ाइल सेव करी, कोड 1, कोड 2, कोड 3, कोड 4 ऐसे करके आप सेव कर रहे हो। तो ये वाली जो आपकी हेडेक है ना, उसके कोड के वर्ज़न्स को मेंटेन करने की, ये सारी चीज़ें वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम करता है। आप अपने प्रोजेक्ट को एक वेबसाइट के ऊपर डाल दो, वहाँ पर आप अपने सारे वर्ज़न्स देख पाओगे। सिर्फ़ आप अपना काम नहीं देख पाओगे, अगर आपका कोई फ्रेंड है उसके ऊपर काम करना चाहता है, वो भी देख पाओगे, अगर वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है, वो भी देख पाओगे। अगर उससे कोई गलती है, उसे ठीक कर पाओगे, कोई वर्ज़न आपने कोड में मिस्टेक कर दिया, वो सारी चीज़ें आप ठीक कर पाओगे। दैट्स हाउ वर्ज़न कंट्रोल वर्क्स, ओके? So version control system VCS basically a system which maintains different versions of your package, different versions of your project. Okay, yeah, much better now. So version control is basically system which manage all the versions of your like project or whatever you have. Okay, इट बेसिकली रिकॉर्ड्स चेंजेस टू अ फाइल और अ प्रोजेक्ट, चेक पॉइंट्स बनाता है आपके, जैसे मैंने बताया आपने प्रीवियस मिस्टेक किया तो वहां पर जा सकते हो। कोलैबोरेट करने की एक्सेस देता है कि मेरा प्रोजेक्ट है तो मुझे पेन ड्राइव लेके अपने यूएस वाले दोस्त के पास नहीं जाना पड़ेगा। मैं उसे इसका लिंक भेज दूंगा, वो गिटहब के ऊपर, गिटलैब के ऊपर या गिट बकेट के ऊपर, किसी भी वेबसाइट के ऊपर मैं डाल दूंगा, तो वीसीएस के थ्रू वो मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर कोलैबोरेट कर पाएगा, रिवर्ट कर सकते हैं, प्रीवियस वर्जन्स को देख सकते हैं। रिवर्ट यानी कुछ गलती कर दी जल्दी से, उससे कोड फट गया एंड एक सेमीकोलन लगाना भूल गए आप, आपने कोड को सेव कर दिया, वो कोड चल नहीं रहा है। तो जल्दी से आप प्रीवियस वर्जन पे जा सकते हो, इंस्टेड कि आप ढूँढो कौन सा सेमीकोलन मिस हो गया, ठीक है? आपको बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंटेशन के लिए एरिया मिल जाता है, आप ब्रांचेस बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। दैट्स द बेसिक सिंगलटन रिक्वायरमेंट फॉर ओपन सोर्स, ठीक है? ये चीज़ अब लोग अब समझ चुके हैं। वर्ज़न कंट्रोल का एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल बताऊँ, बहुत सिंपल सा। मतलब बड़े-बड़े एग्ज़ाम्पल्स तो हैं भाई, गिटहब हो गया, गिटलैब हो गया, बिटबकेट हो गया। हम अमेज़न के अंदर हमने अपना अलग वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम बना रखा है, गूगल ने अपना अलग वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम बना रखा है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें तो हैं। सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट एग्ज़ाम्पल है अपना गूगल डॉक्स। लाइक आई एम श्योर 90% or more than 90% of you have used Google Docs. What you can do on Google Docs is you can open a Google Doc, write things over there. You can share the Google Doc with your friend. Your friend can see that thing. If you give access to edit, your friend will be able to access and like edit those things as well. आप अगर कमेंट्स में जाएंगे या साइड में हिस्ट्री पे जाएंगे तो आपको चेंजेस भी दिख जाएंगे कि आपके फ्रेंड ने क्या चेंज किया, आप उसे रिवर्ट भी कर सकते हैं। दैट्स द बेसिक मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है? गूगल डॉक्स हो गया, सेम कोडिंग के लिए अपने पास अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए हैं। Now, let's talk about like the version control system that we use while coding. That is known as Git. It's like the most widely used version control system. It's like backed up by platforms like GitHub, Bitbucket. मतलब बहुत सारे platforms हैं जो Git को use करते हैं. In fact, बड़ी-बड़ी companies में भी जो उनके इंटरनल वर्जन कंट्रोल सिस्टम है वो भी गिट को ही यूज करते हैं. So Git is basically the most famous, most
वाइडली यूज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, आप कह सकते हैं एक सिस्टम है, एक कमांड लाइन टूल है जो आपको हेल्प करता है आपको आपके कोड को मैनेज करने के लिए। अभी चिंता मत करो, चिंता मत करो, यूज करेंगे, थोड़ा सा डेमो देखेंगे इसका, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक फ्री कोर्स शेयर कर दूंगा एंड में, जहां से आप 7 दिन के अंदर अंदर प्रॉपर मस्त वर्जन कंट्रोल सिस्टम और गिट सीख सकते हो, जो कि आप कंपनीज में भी यूज करने वाले हो, ठीक है। सो इट्स यूज्ड बाय गिटबकेट, बिटबकेट, ये भी गिटबकेट ही होगा, पता नहीं इस कंपनी का नाम क्या है। देयर इज अ प्लेटफॉर्म, और गिटलैब भी है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। And then we have Intuit command line interface, intuitive sorry, basically command line interface, CLI जिसे बोलते हैं अपन लोग। ये GUI भी देता है, graphical user interface। इसके लिए मतलब हम github.com पर जाएंगे तो github.com is basically a website, Git is the VCS, github.com uses Git to support your complete operations, and it's basically the easiest way for beginners to like start open source development. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज गिटहब। गिटहब का नाम सबने सबने सुना होगा, नहीं सुना तो आज सुन लो, और आने वाली जिंदगी में आप दुनिया भर मतलब कहीं भी जाओ यूज करने वाले हो इसको, ठीक है। सॉरी, एंड बेसिकली गिट एंड गिटहब आर सेम। ना ना, गिट और गिटहब सेम नहीं है। अभी अभी मैंने 2 मिनट पहले जस्ट यही चीज बताई है। गिट एंड गिटहब बोथ आर डिफरेंट। गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड गिटहब इज अ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म यानी कि वेबसाइट है गिटहब जो कि गिट को यूज करती है, ठीक है। प्लेटफॉर्म पे आप अपने प्रोजेक्ट्स को देख सकते हो, आइकन्स में, बॉक्सेस के अंदर आप माउस से कर्सर हिला के वो सारी चीजें देख सकते हो, ठीक है। और सेंट्रल कोड स्टोरेज देता है, कोड को स्टोरेज कर सकते हो, ओपन सोर्स डेवलपमेंट में यूज होता है, बहुत प्लेटफॉर्म है अपने शोकेस करने के लिए, और इट्स काइंड ऑफ एक्ट एज एन रिज्यूमे एज वेल। अब जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था, गोजेक की, उन्होंने मेरी गिटहब की प्रोफाइल देखी एंड देन दे रीच्ड आउट टू मी कि भाई इस बंदे ने कुछ काम कर रखा है, लेट्स टेक हिज इंटरव्यूज, ऐसे। एंड दिस इज बेसिकली द प्लेस वेयर मैजिक हैपेंस। Okay, you will be spending a good amount of time on this website, learn its name, and yeah, let's talk about open source opportunities which are Hacktoberfest। मतलब ऑब्वियसली इसे यहाँ पे डालना बनता है क्योंकि इसने मुझे 5 साल टी शर्ट्स दी हैं और आपको भी टी शर्ट्स मिलने वाली हैं इसके थ्रू। आप कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करने वाले हो, चीजें अच्छी होने वाली हैं। देन light is gone, I guess I'm working on inverter power, cool। We have Girl Script Summer of Code, then we have Google Season of Girl Script Summer of Code। बेसिक प्रोग्राम है, मतलब जनवरी में स्टार्ट होती है इनकी एप्लीकेशन, थोड़ा बहुत बिगिनर लेवल के लिए। अक्टूबर फेस्ट करने के बाद आप गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड में जा सकते हो। गूगल सीजन ऑफ डॉग्स, गूगल सीजन ऑफ डॉग्स के ऊपर मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो बना रखी है प्रॉपर, एंड इट इज बेसिकली लाइक मतलब ओपन सोर्स प्रोग्राम है, लेकिन कोडिंग नहीं करनी है आपको इसके अंदर, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड, राइटिंग रिलेटेड प्रोग्राम है। स्टाइपेंड वगैरह बहुत जबरदस्त होता है, कुछ 2 लाख से लेकर 15 लाख तक का स्टाइपेंड होता है इसके अंदर 3 महीने के अंदर, ठीक है। तो ये चीज मतलब टेक विद मुकुल कोड यूट्यूब पे जाना, गूगल सीजन ऑफ डॉग्स डालना, आपको मिल जाएगा ये चीज। ओपन सोर्स हैक है, रेल्स समर ऑफ कोड है, रेल्स गर्ल समर ऑफ कोड है, फॉर विमेन ओनली। आउटरीची सपोर्ट्स डाइवर्सिटी। फॉसेशिया कोड हीट मैंने पार्टिसिपेट किया था, मेरे कॉलेज के जूनियर है, उसने भी इसमें बहुत कुछ मचाया था। गूगल समर ऑफ कोड सबसे मतलब इट्स लाइक द मोस्ट प्रेस्टिजियस थिंग दैट यू कैन डू इन ओपन सोर्स। पैसा है, फेम है, गूगल की वैल्यू है, लाइक एवरीथिंग इज देयर, एंड इट्स जस्ट द बिगिनिंग, ठीक है। ये सब तो मैंने बहुत बेसिक चीजें नोट डाउन की हैं, आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत कुछ है ओपन सोर्स के अंदर, ठीक है। सो अल्टीमेटली यू विल बी लाइक मजा आ जाएगा अगर आप ओपन सोर्स में आते हो। एंड एज अमन धतरवाल सेज, तू फोड़ेगा या तू फोड़ेगी फोड़ेगी स्पेसिफिकली मैंने मेंशन किया है, सो दैट यू डोंट कॉल मी अ सेक्सिस्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हैकटोबरफेस्ट, जिसके बारे में हमने स्टार्ट किया था, जिसके बारे में हमारे डिस्कशन शुरू हुए थे। एंड टॉकिंग अबाउट हैकटोबरफेस्ट, okay, whoever is on mute, unmute, can you please mute yourself, or someone else please mute them? Perfect, thank you so much whoever was it, भगवान आपका भला करे। टॉकिंग अबाउट हैकटोबर फेस्ट, तो यार अपन लोग ने देखा है हैकटोबर फेस्ट, मतलब अभी तक के बारे में नाम नाम ही लिया है मैंने इसका, मैंने बताया नहीं है क्या होता है, ठीक है।
अब हम क्या-क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं, हम देख लेते हैं। हम देख चुके हैं ओपन सोर्स क्या है, ठीक है? ओपन सोर्स को कैसे करना है, क्या प्रीरिक्विज़िट है, वो चीज़ें देख चुके हैं। अब देख लेते हैं यार ओपन सोर्स क्यों ज़रूरी है एंड देन विल मूव टू हैकटोबरफेस्ट। ओपन सोर्स क्यों ज़रूरी है यार? ओपन सोर्स अगर ना हो ना, तो मतलब आप ये समझ लो कि बहुत सारी कंपनीज़ एक्सिस्ट ही ना करें, बहुत सारे स्टार्टअप्स एक्सिस्ट ही ना करें। ओपन सोर्स एक ऐसी चीज़ है कि यार आपने कुछ अपनी इनोवेशन की है एंड यू आर गिविंग बैक टू द पीपल, कि आप दुनिया के इंजीनियर्स की हेल्प कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट को वहाँ पर डाल के कि यार मेरी सर्विस को आप यूज़ करो, मुझे कोई पैसे-वैसे नहीं चाहिए, आप इसे अब जिस तरीके से यूज़ करना चाहते हो, मैंने एक लाइसेंस बना रखा है, उस लाइसेंस को यूज़ करो और मतलब बढ़िया तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह, सॉफ्टवेयर्स बिल्ड करो उस चीज़ को। एंड इट्स लाइक एवरीवन डू दिस, ठीक है? गूगल, अमेज़न, फेसबुक सब बड़ी-बड़ी कंपनीज़ बड़े-बड़े ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स को यूज़ करती हैं। वो अपने अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स को ओपन सोर्स करती हैं ताकि दुनिया यूज़ कर सके एंड दैट्स हाउ दिस कम्युनिटी इज़ ग्रोइंग। अगर ओपन सोर्स बंद हो जाए ना, तो भाई ये समझ लो इंजीनियरिंग खत्म हो जाए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग खत्म हो जाए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो रोल है वो खत्म हो जाए, ठीक है? वापस से कैलकुलेटर पे हम प्लस माइनस खेल रहे होंगे, सांप-सीढ़ी वाली गेम खेल रहे होंगे, लैपटॉप-वैपटॉप सब चलने बंद जाएँगे, ये समझ लो। स्टैक ओवरफ्लो जैसी वेबसाइट बंद हो जाए, सब ठप है, ठीक है? नाउ टू बेसिकली स्टार्ट विद ओपन सोर्स। अब ओपन सोर्स में यार अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं कंट्रीब्यूट करना है, वो कैसे करना है? और उसके लिए मोटिवेशन कहाँ से लाएँ? क्या चीज़ है, क्या फैक्टर है ओपन सोर्स के अंदर? मैं 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, उसका फ़ायदा क्या मिल रहा है? मुझे रिज़्यूमे अच्छा होगा, उसके अलावा कुछ फ़ायदा कुछ भी। सो ओपन सोर्स के लिए मतलब कुछ 3-4 कंपनीज़ मिली, गिटहब वगैरह उन्होंने सोचा एक फेस्ट लाते हैं, हैकटोबर फेस्ट नाम से एंड इसमें हम अपने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स को सेलिब्रेट करेंगे। वी आर गोना लाइक अ, नए कंट्रीब्यूटर्स को ऐड करना इज़ बेसिकली द एम ऑफ दिस हैकटोबर फेस्ट। सो you just have to start open source, you just have to make a few steps into that, and as a reward you will be getting some t-shirt and stickers and a couple of badges for yourself, ठीक है? तो हैकटोबर फेस्ट इसलिए है कि आप एक स्टार्ट कर सकें, ठीक है? फेक आईडी 10-15 फेक आईडी बना के 50-60 टी-शर्ट घर मंगा के कुछ नहीं होने वाला है। इट्स जस्ट फॉर यू पीपल टू गेट स्टार्टेड विद ओपन सोर्स। दैट्स व्हाई कंपनीज आर स्पेंडिंग अ रियली बिग अमाउंट ऑफ मनी टू दिस, ठीक है? I don't remember last year it was 50,000 t-shirts. 50,000 t-shirts were shipped globally to different countries, different states, different people, ठीक है? 50,000 टी-शर्ट उन्होंने खरीदी, बनाई, स्टिकर्स बनाए, भेजे, इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर होस्ट किया, इतने सारे लोग इन्वॉल्व किए गए इसके अंदर। दैट इज़ व्हाट मेक्स ओपन सोर्स कम्युनिटीज़ ग्रेट, ठीक है? अब हमारा काम है, ठीक है, अक्टूबर फेस्ट से स्टार्ट कर दिया, बट इट्स आवर जॉब टू गेट दिस थिंग डन एंड मूव फॉरवर्ड। सो लेट अस स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग। लेट्स स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग विद द बेसिक स्टफ, ओके? अपन लोग देखते हैं कि अब हमने बहुत बातें कर ली कि हैकटोबर फेस्ट समझ में आ गया है, ओपन सोर्स समझ में आ गया है, प्रीरिक्विजिट समझ में आ गई हैं। सारा जो थ्योरी वाली चीज़ें हैं मोस्टली हम कवर कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट हाउ एग्ज़ैक्टली आर वी गोइंग टू डू ऑल दोज़ थिंग्स? सो लेट्स टॉक अबाउट दिस हैंड्स ऑन गाइड। ये जो मतलब पीपीटी है, ये मैं शेयर कर दूँगा, उसकी चिंता मत करो। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर तो एटलीस्ट डाल ही दूँगा, यहाँ पर मेरे पास चैट का ऑप्शन नहीं है। चले जाना टेक विद मुकुल कोड सर्च कर देना, टेलीग्राम पे वहाँ मिल जाऊँगा, यूट्यूब पर टेक विद मुकुल कोड सर्च कर देना, वहाँ मिल जाऊँगा। कहीं न कहीं तो मैं डाल ही दूँगा इसको। एंड फर्स्ट स्टेप इज़ बेसिकली टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन github.com। गिटहब मत बोलना, मैं एक दोस्त गिटहब बोलता था, हमने भी गिटहब बोलना शुरू कर दिया, वो गलत प्रोनंसिएशन है इसकी, गिटहब इज़ द रियल नेम। गिटहब.com पर जाएँगे, जैसे आप अपना नॉर्मल अकाउंट बनाते हैं फेसबुक पे, टिंडर पे, टिंडर सुन के बहुत खुशी हुई कुछ लोगों को। जिस तरीके से आप वहाँ पर अकाउंट बनाते हैं, नॉर्मली आपको यहाँ पर अकाउंट बनाना है, कुछ ज़्यादा हाइप्ड नहीं है, टेक्निकल नहीं है, ठीक है? देन व्हाट वी आर गोना डू ओवर हियर इज़ आपको गिट वीसीएस को इंस्टॉल करना है, ठीक है? गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम को इंस्टॉल करना है व्हिच इज़ काइंड ऑफ अ वेरी बेसिक थिंग। कुछ दिक्कत की बात नहीं है, लेट मी जस्ट गो थ्रू दैट, ठीक है? अपन अभी डायरेक्टली इंस्टॉल करके नहीं दिखाने वाले हैं, इतना कुछ बड़ा होता नहीं है। विंडोज़ पे आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल हो जाएगा। मैक ओएस में बहुत ईज़ी रहता है, मैक में तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मैक में आप जाके गिट रन कर दोगे सिर्फ GIT, तब भी हो जाएगा, ठीक है? तो ये तो हो गई बेसिक स्टफ।
Okay, we are 68 people over here. Just give me a second. 86 people over here. Cool. तो यहाँ से आपको वर्जन कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल करना है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम का नाम क्या है? गिट। आपको मैंने दिखा दिया कैसे। github.com पर जाओगे, आपको बेसिक अपना नॉर्मल अकाउंट बनाना है, कुछ नहीं है। देन यू हैव टू रजिस्टर फॉर हैकटोबरफेस्ट। हैकटोबरफेस्ट .com पर जाओगे आप, hacktoberfest.com यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ओपन है इसके। लॉन्च इनिशिएटेड इस साल, काफी नेक्स्ट लेवल वेबसाइट बना रखी है इन्होंने। लॉन्च सीक्वेंस हैक, boot dialog, registration is open, prepare to hack. Preptember मतलब Preptember was basically to prepare और basically familiarize करना अपने आप को Git के लिए. And what's new about 2022? You'll be able to see different things over here. We have okay, we have different stuff, different what do we call it, like बेसिक जिन्हें इवेंट्स बोलते हैं, आप उनका इवेंट भी यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड था, मतलब लिस्टेड था। देखा था मैंने। एंड यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशंस नाउ ओपन, और यू कैन स्टार्ट, लाइक स्टार्ट हैकिंग पे क्लिक कर दो। आपको बेसिक जो आपने गिटहब पे अकाउंट बनाया ना, यहाँ पर पीछे गिटहब पे, उस अकाउंट के थ्रू यहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और वहां पर आपका एक ईमेल आएगा, आपके एक एड्रेस पर, ईमेल एड्रेस पर आपको एक ईमेल आएगा, एंड देन यू विल बी लाइक गोइंग गुड। ठीक है, स्टार्ट हैक पर क्लिक कर देंगे, इनिशिएट पर क्लिक कर देंगे, एंड थोड़ा ऑथराइजेशन वगैरह बेसिक स्टफ होगा। ऑथराइजेशन के बाद आप मतलब लॉग इन कर चुके होगे। ठीक है। ये मेरी सिस्टर का अकाउंट है, इसके थ्रू हम डेमो देखने वाले हैं। यहाँ पर बेसिक स्टफ है कि मैं एक्नॉलेज करता हूँ, ये एक्नॉलेज करता हूँ, वो करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, एंड या आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू विल बी डन। लेकिन अभी क्या है, अक्टूबर में, मतलब अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। अभी आपकी जो पुल रिक्वेस्ट वगैरह है वो काउंट नहीं होंगी। 1 अक्टूबर के बाद में जो कुछ भी आप एक्शंस करोगे, वो सब चीजें काउंट होंगी। तो अभी आप अपना नॉर्मल बेसिक अकाउंट बना सकते हो। ठीक है। और या ये चीज हो गई है। अकाउंट बनाने के बाद में आपको देखना है कि यार आपको है ना प्रोजेक्ट्स के ऊपर कंट्रीब्यूट, कौन-कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर कंट्रीब्यूट करना है। ठीक है। एक बार github.com पर जाकर देख लेते हैं कि वेबसाइट कैसी लगती है। मतलब दिस इज हाउ github.com लुक्स लाइक। github.com/mukul code, यानी कि ये मेरी प्रोफाइल है। बहुत टाइम से मैंने कुछ अपडेट नहीं किया इसके अंदर। प्रोग्रामर, पाइथन, डेटा साइंटिस्ट, ये सब चीजें बहुत पुरानी है। ठीक है। एंड 186 फॉलोवर्स। गिटहब का एक फॉलोवर यानी कि इंस्टाग्राम के 100 फॉलोवर्स के बराबर होता है, या फिर उससे ज्यादा। एंड दिस इज योर रिपोजिटरीज कि यार आपने कितने प्रोजेक्ट्स डाल रखे हैं यहाँ पर। सो आई हैव अराउंड 60 प्रोजेक्ट्स। कुछ मेरे हैं, कुछ मैंने किसी और के लिए हुए हैं। ऑब्वियसली आप किसी के भी प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। दैट्स द पावर ऑफ ओपन सोर्स। रिकमेंडेशन एमएल, ब्लैक जैक गेम कुछ होती थी, कार्ड वाली गेम, हैकर रैंक के सॉल्यूशन, टाइगर की एक एप्लीकेशन, बेसिक गेम्स बनाई है मैंने। उबर का क्लोन बनाया है, कोविड ट्रैकर था, कहीं से लिया होगा मैंने ये। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम विच पीपल कम टू यू, विच इज नोन एज द गिटहब ग्राफ। यहाँ पे दिखाते हैं कि यार आपने कितने कॉन्ट्रीब्यूशन किए हैं। ठीक है, ये 61 कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरे लास्ट ईयर में। ऑब्वियसली आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माय टाइम इन माय कंपनी। तो अभी ओपन सोर्स में मैं इस अकाउंट के थ्रू तो नहीं करता हूँ। गिटलैब पर जो अकाउंट है ओपन सोर्स, उसके थ्रू कर रहा हूँ आजकल। एंड ये 2022 का सिनेरियो है। 2021 में मेरे 124 कॉन्ट्रीब्यूशन थे। ये दिन है कि यार अक्टूबर में 11 अक्टूबर को मैंने 2 चीजें कमिट की, 12 को 2 करा, कुछ ऐसे करके। बट द मेन थिंग है द ईयर 2020। तो 2020 जो साल था, उसमें मैंने इतने सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए थे, 1000 से भी ज्यादा, व्हिच मींस आई वाज मोस्ट एक्टिव ओवर देयर। मैं जो कुछ भी कोड करता था, अपने प्रोजेक्ट्स हो गए, कॉम्पिटिटिव कोडिंग का हो गया, नॉर्मल डीएसए की प्रॉब्लम्स हो गई, मैं सब कुछ यहाँ पर पुश किया करता था, व्हिच मेड माय ग्राफ लुक कंसिस्टेंट। इससे सामने वाले को देखने को आइडिया लग जाता है कि यार हाँ, बंदा कोडर है, बंदे में दम है। ठीक है। अब हमें उनका जजिंग का क्राइटेरिया सबका अलग-अलग होता है। देन दे लुक कि यार इंटरव्यूज़ लेने हैं, क्या करना है, वो वाली सारी चीज़ें। और ये सिर्फ ऐसे झटके में नहीं आता कि आप एकदम सो के उठो और तुम ठान लेते हो, अब तो ये चीज़ करनी है ज़िंदगी में, ऐसे नहीं चलती हैं चीज़ें। It was 2019 where I was consistent to 561 contributions. It was 2018 फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड। यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट वगैरह कुछ क्रिएट किया, यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशन सीखे। देख रहे हो, अक्टूबर अक्टूबर में मैंने मेन कंट्रीब्यूशंस करे थे 3, 5, 3, जो कि अक्टूबर फेस्ट के थ्रू मेरी जर्नी शुरू हुई थी, व्हिच वेंट ग्रेट ओवर हियर, व्हिच वेंट ग्रेट ओवर हियर एज़ वेल। और
आई एम स्टिल ट्राइंग टू शेयर दिस विद एवरीवन, ठीक है? तो आप लोग भी शुरू कर सकते हो बढ़िया तरीके से। नाउ coming back to our slides, what do we have to do over here is वी हैव टू लुक फॉर प्रोजेक्ट्स। आपको प्रोजेक्ट्स ढूँढने हैं एंड देन यू कैन कंट्रीब्यूट टू देम, ठीक है? हम एक ऐसा बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेंगे, कुछ हेवी एग्ज़ाम्पल नहीं लेंगे, कुछ मुश्किल चीज़ नहीं लेंगे। हम एक फाइल लेंगे, एक प्रोजेक्ट लेंगे, प्रोजेक्ट के अंदर हमें क्या करना है, अपना नाम डालना है, ठीक है? इतना सा काम है, यानी कि किसी ने प्रोजेक्ट बना रखा है एक, उसके अंदर एक फाइल है, उस फाइल के अंदर हमें उस प्रोजेक्ट को अपने पास लेना है सबसे पहले तो। अपने पास लेने के बाद में उसके अंदर एडिट करनी है चीज़ें एंड देन विल मर्ज इट विद द मेन प्रोजेक्ट, ठीक है? इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंगल कंट्रीब्यूशन, कि आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया, आपने अपना कोड वहाँ पर भेजा जो कि एक्सेप्ट हो गया और जब आप अपना कोड वहाँ पर भेजते हो दैट थिंग इज़ नोन एज़ अ पुल रिक्वेस्ट, ठीक है? प्रैक्टिकल करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, अपन के पास अभी थोड़ा टाइम है। सो बट और बिगिनर्स के लिए आप बड़े प्रोजेक्ट्स को ना खराब करो, इसलिए आप थोड़ा-सा कोई बेसिक सा प्रोजेक्ट उठा सकते हो। व्हाट यू कैन डू इज़ देयर इज़ अ प्रोजेक्ट कॉल्ड, ये वाला प्रोजेक्ट ले लेते हैं अपन लोग, github.com/mukul code/coding club India। ये हैकटोबर फेस्ट के लिए ही बनाया था मैंने, ये 2-3 साल से चलता आ रहा है, इतने सारे चीज़ें हैं इसके अंदर, इतने सारे लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है इसके अंदर, ठीक है? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर इज़ जब आप लोग गिटहब एक बेसिक स्टार्ट करते हैं, github.com पे चलते हैं अपन लोग। github.com पे जा चुके हैं, ये मेरी सिस्टर का अकाउंट है। वो भी ये वीडियो देख ही लेगी थोड़ी देर में एंड इसके थ्रू हम डेमो करने वाले हैं। मेरा मुकुल कुमार का नाम का जो अकाउंट है, आई एम गोना यूज़ माय सिस्टर्स अकाउंट टू मेक सम कोड चेंजेस इनटू माय अकाउंट, ठीक है? तो अब मैं अपने अकाउंट से यहाँ पर लॉगिन कर चुका हूँ और मैंने एक रिपॉजिटरी खोली है github.com/mukul code/coding club India। तो ये रिपॉजिटरी का नाम है, ये स्पेसिफिकली हैकटोबर फेस्ट के लिए बनाई गई है। इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, कुछ लोगों ने फ्लेम्स गेम डाल रखी है, किसी ने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल रखा है, किसी ने कुछ हैकटोबर फेस्ट 19, किसी ने कुछ मोहित अपना नाम डाल रखा है, किसी ने पुल रिक्वेस्ट डाल रखी है। तो यहाँ पर आप बेसिकली ट्रैश पुल रिक्वेस्ट डाल सकते हो, ठीक है? 108 लोग कंट्रीब्यूट कर चुके हैं इसके अंदर अभी तक एंड यू कैन कंट्रीब्यूट हियर एज़ वेल। सो अब हम करने वाले क्या हैं, हम इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले फॉर्क करेंगे। फॉर्क करना यानी कि अपनी आईडी पर लाएँगे, ठीक है? अभी इसका नाम क्या है, मुकुल कोड/कोडिंग क्लब इंडिया। यहाँ पर फॉर्क का बटन दिख रहा है, फॉर्क यानी कि 124 लोगों ने इसे फॉर्क कर रखा है। यहाँ पर हम इसे फॉर्क करते हैं एंड अ, यहाँ पर फॉर्क पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी एक रिपॉजिटरी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये पहले से क्रिएटेड है। तो अपन लोग कोई और रिपॉजिटरी भी ले सकते हैं। डीएससीएमएसआईटी पर चलते हैं। डीएससीएमएसआईटी पर हैक2परफेस्ट पीआर नाम का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है? यहाँ पर भी कुछ लोगों ने पीआर-वीआर मार रखी हैं। इसे फॉर्क कर लेते हैं, ठीक है? ओह! ये भी फॉर्क कर रखा है मैंने तो। तो हेलो वर्ल्ड इन एवरी लैंग्वेज एक और नया प्रोजेक्ट उठा लेते हैं, इसे फॉर्क कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये प्रोजेक्ट का नाम आ गया, ये ओनर है, मेरा नाम यानी कि और ये रिपॉजिटरी का नाम है, ठीक है? और यहाँ पर हम कर देते हैं क्रिएट फॉर्क के ऊपर क्लिक। यार एक प्रोजेक्ट था डीएससी एमएसआईटी का, डीएससी एमएसआईटी का प्रोजेक्ट था हेलो वर्ल्ड इन एवरी लैंग्वेज। अब उसे मैंने फॉर्क कर लिया, फॉर्क यानी कि उसकी एक कॉपी मैंने अपनी प्रोफाइल पे, अपनी गिटहब प्रोफाइल के ऊपर बना ली है। सो दैट्स व्हाई इट्स नेम हैज़ चेंज्ड टू monica0924 हेलो वर्ल्ड इन एवरी लैंग्वेज। तो अब ये मेरा प्रोजेक्ट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं जो चीज़ चाहूँ वो चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है? सिंपल है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ कोड पे जाएँगे। अब यार यहाँ पे हम क्लिक करें, हम यहाँ पे कोड को देख सकते हैं, अच्छा ये कोड है। लेकिन हम यहाँ पे एडिट करना, कोड को रन करना, वो चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो अपन लोग क्या करते हैं, इस कोड को है ना अपने लोकल सिस्टम के ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है? यहाँ पर कोड पे जाएँगे, आप ज़िप फ़ाइल भी डाउनलोड कर सकते हो, ज़िप की तरह डाउनलोड हो जाएगा। आप चाहो तो बेस्ट क्या है मुझे लगता है कि आपको ये यूज़ करना चाहिए, मतलब आप इसका एचटीटीपीएस का लिंक कॉपी कर लीजिए, इस लिंक को यूज़ करके हम इस प्रोजेक्ट को अपने सिस्टम में डाउनलोड करने वाले हैं, ठीक है? डाउनलोड ज़िप पे क्लिक करूँगा तो एक ज़िप फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, बेसिक वो तो बेसिक है, वो तो बच्चों की चीज़ है। अब आप इंजीनियर बनने जा रहे हो यार, टेक्निकल चीज़ें बढ़िया तरीके से करी जाएँगी, है ना? तो अपन लोग चलते हैं एक टर्मिनल, मैं यहाँ पर टर्मिनल खोल लेता हूँ। मेरे लिए ये टर्मिनल है, ठीक है? अगर आप विंडोज़ पर हैं,
तो विंडोज पर मैंने यहाँ पर एक स्टेप बताया था, ये वाला VCS डाउनलोड करने वाला। तो आप जब VCS डाउनलोड कर लोगे, वो VCS आपका इस तरीके से खुलने वाला है, ठीक है? तो इस टर्मिनल में मैं पहले चले जाता हूँ CD डेस्कटॉप, यानी कि मैं डेस्कटॉप के अंदर आ रहा हूँ। CD मतलब चेंज डायरेक्टरी। आपने बेसिक ये कमांड तो आप सीख ही चुके होगे अभी तक। और यहाँ पर मैं कमांड रन करता हूँ गिट क्लोन और प्रोजेक्ट का नाम, मतलब जो अभी हम अपन लोग ने लिंक कॉपी किया, तो गिट क्लोन github.com, ये हेलो वर्ल्ड इन एवरी लैंग्वेज गिट। और अब यहाँ पर अभी अभी अपन ने देखा ये फोल्डर अपने आप क्रिएट हो गया, है ना? अब ये फ़ोल्डर क्या चीज़ है यार, ये फ़ोल्डर अपना, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी फाइल्स हैं इस फ़ोल्डर के अंदर। यहाँ पर इस फाइल को मैंने खोला तो ये सीपीपी का कुछ कोड खुल गया, ये खोला तो इसके अंदर ये कुछ कोड खुल गया। तो ये सारी जो फाइल्स हैं, वो अपन लोग के पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है? और तुषार, वंशिका, विपिन, यश वगैरह, मतलब सब कुछ है। ये रीडमी फाइल यहाँ पर है। तो अपन लोग क्या करते हैं, रीडमी के अंदर कुछ चेंजेस कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं फाइल के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ रीडमी। अ, तो ये रीडमी जो फाइल है, अपन लोग ने डाउनलोड की थी। अच्छा, मेरे पास अभी कुछ इसके लिए डाउनलोड करने के लिए नहीं है, मुझे लगता है। गिव मी अ सेकंड, आई विल बी एबल टू कंप्लीट इट विद इन अ मिनट। थोड़ा-सा मैकबुक का यही फ़ायदा रहता है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने रीडमी को खोला, यहाँ पर क्या था, हेलो वर्ल्ड इन एवरी लैंग्वेज, बस इतना कुछ लिखा हुआ है। बिल्कुल सही है, यहाँ भी बस इतना ही कुछ लिखा हुआ है। हैश का मतलब है ये हेडिंग की तरह लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ दिस इज़ अ डेमो एंड आई एम एडिंग अ न्यू लाइन इन द रीडमी फाइल। रीडमी फाइल का मतलब क्या होता है, ये आपकी डिस्क्रिप्शन होता है, जो भी आप प्रोजेक्ट है, आपका जो प्रोजेक्ट है, उसका डिस्क्रिप्शन। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी तक कुछ डिस्क्रिप्शन था नहीं, तो हम डाल देते हैं आई एम एडिंग अ न्यू लाइन इनटू द रीडमी फाइल। दिस प्रोजेक्ट विल बी हेल्पफुल फॉर दोज हु आर जस्ट गेटिंग started with open source, and at the end I'll add may the source be with you। और अपन लोग इस फाइल को सेव कर देंगे, कंट्रोल एस, जो कुछ भी होता है। नाउ आई हैव सेव दिस फाइल ओवर हियर, मतलब जो हमने प्रोजेक्ट डाउनलोड किया वो प्रोजेक्ट यहाँ पर है, इसको मैंने खोला, इसके अंदर से फाइल ढूंढी रीडमी, MNOPQR रीडमी, और इसके अंदर मैंने ये न्यू चेंजेस डाल दिए। ये न्यू चेंजेस मुझे यहाँ पे ग्रीन लाइन पे दिख भी रहे हैं, क्योंकि ये नए चेंजेस हैं, ठीक है? नाउ आई एम इनसाइड माय गिट डेस्कटॉप। पहले तो हम इस फ़ोल्डर के अंदर चलते हैं, हेलो वर्ल्ड लैंग्वेज, और हम यहाँ पर अब यहाँ इस टाइम पर हम एक गिटहब रिपॉजिटरी के अंदर हैं, मेरे लोकल सिस्टम के अंदर। सो व्हाट आई एम गोना डू हियर इज़ आई विल जस्ट रन दिस कमांड कॉल्ड गिट स्टेटस या फिर गिट स्टेटस, जो कुछ आप बोलना चाहें। गिट स्टेटस डालने के बाद यहाँ पर ये बता रहा है कि हमने 3 फाइल्स मॉडिफाई करनी है, hello world डॉट सीपीपी, hello world डॉट सीपीपी और readme.md। हो सकता है हमने कुछ हेलो वर्ल्ड के अंदर चेंज किया हो, मुझे ध्यान नहीं। तो अपन लोग ने क्या चेंज किया है, मेन readme.md के अंदर चेंज किया है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, पहले गिट रिस्टोर, मतलब जो चेंजेस हमने नहीं किए उन्हें हटा देते हैं। हेलो WORLD डॉट सीपीपी, एक चेंज हटा दिया मैंने, फिर से रन करते हैं गिट स्टेटस। गिट स्टेटस एक सेकेंड, गेट स्टोर HELLO, अच्छा हेलो वर्ल्ड से बहुत सारी फाइल्स हैं, WORLD डॉट कैपिटल में CPP। इफ वी रन गिट स्टेटस दैट इज, वो वाली फाइल चली गई है। अरे बहुत सारी फाइल एडिट हो रखी हैं। लेट्स डू वन थिंग, अपन लोग ने जो फाइल चेंज की है द रीडमी फाइल, वी आर गोना पुश दैट फाइल। ओके, सो विल डू इज गिट ऐड। गिट ऐड मतलब का क्या मतलब क्या है कि यार गिट स्टेटस से हमें दिख गया कि कौन कौन सी फाइल चेंज हो रखी हैं हमारे सिस्टम के अंदर। गिट ऐड का मतलब क्या है, मैं उसे एक इंटरमीडिएट स्टेट के अंदर ऐड कर रहा हूँ। मतलब देखो, ये अब जो मैं चीज समझाने वाला हूँ ना, वो बहुत जरूरी होने वाली है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे देना। ये रिपॉजिटरी है सबसे ऊपर, मेन रिपॉजिटरी जिस पर्सन ने क्रिएट की है। यहाँ पर ये DSC MSIT की रिपॉजिटरी है, तो उनके पास है। हमने उसकी एक कॉपी बना ली, राइट में फॉर्क किया। इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉर्क करना। फॉर्क करके मैंने एक उसकी कॉपी बना ली, एंड दैट कॉपी इज
in my what do we call it, in my id, in my github account, DACMSIT के github account पे एक फाइल प्रोजेक्ट था, उसका उसे फॉर्क करके मैंने एक प्रोजेक्ट अपने प्रोफाइल के अंदर बना लिया, अपनी प्रोफाइल के अंदर। अब इस प्रोफाइल में से, अपनी प्रोफाइल में से मैंने कौन सी कमांड यूज करी, गिट क्लोन यूज करी। गिट क्लोन को यूज करके मैंने उसे अपने लोकल सिस्टम के अंदर डाल दिया, ठीक है, सबसे पहली जो ऊपर कमांड थी। और गिट क्लोन को यूज करने के बाद में वो, मतलब लेफ्ट में यहाँ पर मेरे पास है मेन जगह रिसोर्स, उससे मैंने अपनी प्रोफाइल पे लाया, अपनी प्रोफाइल में से मैं अपने सिस्टम के अंदर ले आया, कंप्यूटर के अंदर। मुझे रन करना है, मुझे देखना है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पे। अब इस अपने कंप्यूटर के अंदर मैंने एक चेंज किया रीडमी फाइल के अंदर, हो सकता है कुछ और फाइल के अंदर भी चेंज कर दिया हो, लेकिन रीडमी के अंदर मुझे बिल्कुल ध्यान है, मैंने अच्छी तरीके से चेंज किया। बाकी 2-4 फाइलें और खोली थी, रीडमी को मुझे अच्छी तरीके से याद है, हमने एक लाइन डाली है, 2-3 लाइन डाली है एक्स्ट्रा। तो अब इस लाइन को मुझे यहाँ भेजना है, तो इस लाइन को मैं ऐड करता हूँ पहले, ऐड यानी कि एक इंटरमीडिएट स्टेट के अंदर ऐड करता हूँ मैं यहाँ पर। ऊपर मेरा सिस्टम है, मतलब मेरी प्रोफाइल है, नीचे मेरा लोकल है, बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट है। तो मैं अपनी फाइल्स को जिसको कमिट करना है उसे इंटरमीडिएट स्टेट में डालूंगा, उसे पैक करूंगा, पैक यानी कि कमिट करूंगा, फिर ऊपर भेज दूंगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने गिटहब अकाउंट के ऊपर, ठीक है। तो अब हम इस फाइल को ऐड कर रहे हैं, विच इज गिट ऐड readme.mp। फिर से गिट स्टेटस रन करते हैं। गिट स्टेटस रन करने के बाद हमें दिख गया एक फाइल हमने मॉडिफाई की, विच इज readme.md। ये हमने ऐड कर दी है, यानी कि ये एक स्टेज पर जा चुकी है। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास ऊपर मेरा क्या चीज है, ऊपर मेरे पास मेरी वेबसाइट है, नीचे मेरा लोकल है, बीच में आ चुकी है ये। यहाँ पर हम बहुत सारी फाइल्स ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी फाइल्स में चेंजेस करेंगे, तो फिर उनका पैकेट बनाएंगे और ऊपर भेज देंगे। पैकेट बनाने के लिए अपन लोग क्या कमांड यूज करेंगे, गेट कमिट। तो अपन लोग यहाँ पर करते हैं गेट कमिट -m। -m का मतलब एक मैसेज के साथ में भेज रहा हूँ मैं कि ये मैसेज ऊपर तक जाना चाहिए, ठीक है। मैसेज में डाल देता हूँ, ओप्स, एंटर करने के बाद ये कूल, आई हैव एडिटेड द रीडमी फाइल फॉर डेमो पर्पस। यहाँ पर इसने कहा था कि एक फाइल चेंज हुई है, 7 लाइन इंसर्ट हुई है और एक डिलीट हुई है। हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर लोकल था, लोकल से यहाँ पर पैकेट बन चुका है, पैकेट को ऊपर पुश करना। तो इसके लिए पुश, इस तरीके से गेट की कमांड है, गेट पुश। अपन लोग अब गेट पुश कर रहे हैं, यहाँ पर आ गया कि गेट पुश हो चुका है, यानी कि मैंने जो अपने लोकल सिस्टम के अंदर चेंज किए वो मेरी आईडी पर दिखने चाहिए। अब अपन लोग अपनी आईडी पर चलते हैं, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड इन एवरी लैंग्वेज को रिफ्रेश कर देते हैं इस पेज को, एंड बूम, यहाँ पर अपन लोग को नीचे लाइन देखने को मिल गई। दिस इज अ डेमो एंड एडिंग अ न्यू लाइन टू माय रीडमी फाइल एंड दिस प्रोजेक्ट विल बी हेल्पफुल फॉर दोस हु आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद ओपन सोर्स। मे द सोर्स बी विद यू। कूल, आधा काम अपन लोग का हो चुका है। मैं दोबारा से प्रोसेस रिमाइंड करा रहा हूँ, ये प्रोसेस बहुत जरूरी है भाई। कंपनी में लोग इंटर्न की तरह ज्वाइन कर रहे होते हैं, घंटा कुछ नहीं पता होता उन्हें इस चीज के बारे में, ठीक है। सो मेन प्रोजेक्ट है यहाँ पर, किसका प्रोजेक्ट है, DSCMSIT का। कहाँ पर होस्टेड है वो, dsc.github.com/DSCMSIT/hello world in every language। ये गिटहब का प्रोजेक्ट है मेन। इसकी कॉपी बनाई मैंने अपनी वेबसाइट पर, अपने प्लेटफॉर्म पर, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, github.com/monica0924 hello world in every language। ये अभी वेबसाइट के ऊपर ही पड़ा है। फिर इस वेबसाइट से मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर डाला, कौन सी कमांड यूज करी, गेट क्लोन। गेट क्लोन के बाद क्या चीज डाली, यहाँ पर से जो हमें ये यूआरएल मिला, गेट क्लोन, ये यूआरएल ये मेरे कंप्यूटर के अंदर आ गया। दैट्स फाइन, ग्रेट, परफेक्ट, मस्त लग रहा है। कंप्यूटर के अंदर अब मैं उसे रन कर सकता हूँ, खेल सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। तो अपन लोग ने कंप्यूटर के अंदर लाने के बाद में, यहाँ पे अपने लोकल में लाने के बाद में, एक लाइन, एक फाइल चेंज करी, readme.md फाइल चेंज कर दी अपन लोगों ने सबसे नीचे। फिर उस फाइल को यहाँ ऊपर ऐड किया, किस कमांड से, गेट ऐड से। गेट ऐड करने के बाद उसका एक पैकेट बनाया जिसका नाम रखा, जिसके लिए हमने एक लाइन डाली, अभी हम देखेंगे कौन सी कमांड यूज करी, गेट कमिट स्पेस -m डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमारा जो कमिट मैसेज था हमने वो डाल दिया, ठीक है। पैकेट बना के हमने पुश कर दिया, पुश हो गया अभी, है गिट पुश सक्सेसफुल हो गया हमारा कमांड लाइन पे। यहाँ पर अब हमें वेबसाइट पर भी वो चीज दिख रही है, क्लियर मस्त तरीके से दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वेबसाइट के ऊपर चेंज देखने को मिल गया है।
यहाँ पर देखो रीडमी फाइल के ऊपर लिखा आ रहा है 2 मिनट्स अगो। सारे चेंजेस 3-3 साल पुराने हैं, लेकिन ये 2 मिनट पहले का। यहाँ पर क्या है, आई हैव एडिटेड द रीडमी फाइल फॉर डेमो पर्पस। ये कौन सा मैसेज है? जो हमने गेट कमिट कमांड में यूज किया था। गेट कमिट हाइफन एम करके जो हमने यूज किया था, वो अपन लोग को यहाँ पे दिख जाएगा। अब कहाँ गया गेट कमिट? नो चेंजेस टू कमिट, गिट स्टेटस, ये रहा गेट कमिट हाइफन एम, आई हैव एडेड अ फाइल फॉर डेमो पर्पस। तो वो कमिट मैसेज हमें यहाँ दिख गया। तो अब हमें क्या करना है, ये मेरा प्रोजेक्ट है लेकिन मुझे इसके अंदर चेंज करना है, डीएससी एमएसआईटी के अंदर। तो अब यहाँ से अपनी वेबसाइट से डीएससी एमएसआईटी के अकाउंट पे मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा। दैट रिक्वेस्ट इज नोन एज पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है द ब्रांच इज वन कमिट अहेड ऑफ डीएससी एमएसआईटी मास्टर। यानी कि डीएससी एमएसआईटी की जो मास्टर ब्रांच है ना, वहां से हम एक कमिट आ गए हैं, यानी कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस हैं। अब अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ कंट्रीब्यूट पे क्लिक कर लेते हैं एंड ओपन अप पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर दिखा देते हैं कि यार एक हमने एडिट करी है फाइल, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल देंगे कि इसके अंदर हमने ये किया है, ये किया है, वो किया है, वो वाली सारी चीजें। सो आई हैव made some basic changes only. Uh, just the README file is changed, and I hope it will get approved real soon. बस एक इमोजी भी डाल दिया और यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर वो चेंजेस दिखा रहा है कि पहले क्या था, उनके पास सिर्फ एक लाइन थी, अब उस एक लाइन के बाद में एक खाली लाइन ऐड हुई है, दो लाइंस लिखी हुई हैं, दो खाली लाइन ऐड हुई हैं, फिर एक मे द सोर्स भी विद यू ऐड हुआ है। ये हमारी पुल रिक्वेस्ट के अंदर आ रहा है, एंड हियर वी आर क्रिएटिंग अ पुल रिक्वेस्ट। अब ये पुल रिक्वेस्ट देख रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह नहीं है इसके अंदर। अब डीएससी एमएसआईटी का भी जो कोई भी ओनर है, जो कोई भी इसका ओनर है, वहां पर जाकर उन्हें वहां पर जाएंगे तो उन्हें वहां पर पुल रिक्वेस्ट दिख जाएगी, ये रही पुल रिक्वेस्ट, कि किसी ने भाई ये पुल रिक्वेस्ट यहाँ पर डाली है। पुल रिक्वेस्ट अगर उन्हें ठीक लगती है तो वो मर्ज कर देंगे, उन्हें ठीक नहीं लगती तो वो मर्ज नहीं करेंगे। ठीक है, सो दिस कंप्लीट प्रोसेस जहां तक आपने पुल रिक्वेस्ट रेज की, ये आपके हैकटोबर फेस्ट में काम आती है। ठीक है, आपको 4 से लेकर 5 तक पुल रिक्वेस्ट रेज करनी होंगी अक्टूबर के मंथ में, और उसके बाद आपको आपका प्राइस या फिर आपका रिवॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है, और सिर्फ उन्हीं रिपोजिटरीज पर पुल रिक्वेस्ट मारना जो हैकटोबर फेस्ट में एक्सेप्टेड है। जैसे कि मेरी जो ये वाली रिपोजिटरी है, मुकुल कोड कोडिंग क्लब इंडिया, यहाँ पर मैंने हैकटोबर फेस्ट के टैग्स डाल रखे हैं। हैकटोबर फेस्ट एक्सेप्टेड 2022 का भी डाल दूंगा, तो यहाँ पर मार सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड इट वाज लाइक द फर्स्ट पुल रिक्वेस्ट दैट वी हैव जस्ट क्रिएटेड राइट नाउ। सेम स्टेप्स को यूज करके आप भी कर सकते हो। पुल रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी तो आपका जो कोड है वो डीएससीएमएसआईटी यानी कि मेन जो प्रोजेक्ट था वहां पर मर्ज हो जाएगा। ठीक है, was like the basic thing, the most basic thing I can show you right now. And बाकी सारी चीजें वहीं लिखी हैं कि एक लाइक यू हैव टू गिट बैच खोलना है, टर्मिनल खोलना है, प्रोजेक्ट्स करने हैं, गिट ऐड करना है, एंड देन ऑल दोस थिंग्स। देयर इज अ गिट चीट शीट एज वेल। मतलब जैसे मैंने आपको अभी 2-3 कमांड बताई है ना, गिट स्टेटस बताया मैंने, स्टेटस बताता है, गिट ऐड बताया मैंने, गिट कमिट बताया मैंने, गिट कमिट हाइफन एम बताया मैंने, और मैंने बताया गिट पुश बताया मैंने, और बेसिक चीजें बताई। लेकिन गिट के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, गिट सारी दुनिया यूज कर रही है, मैं देखता हूँ इट काइंड ऑफ फील्स रियली बैड व्हेनेवर आई सी इंटर्न्स गेटिंग फक्ड अप बाय गिट। ठीक है, ये चीज आपको पहले से आनी चाहिए। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि 3 महीने में इंटर्नशिप शुरू होने वाली है, क्या चीज करूँ, एंड आई जस्ट सजेस्ट देम कि भाई गिट स्ट्रॉन्ग कर लो अपना। ठीक है, अभी तो सिंपल है, जब 10 लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे ना तब भसड़ मच जाएगी। सो दिस इज द हैंड्स ऑन गाइड कंटिन्यूड। सेम जो चीजें अपन लोग ने की हैं, आई हैव रिटन दोस ओवर हियर। And now let's talk about the questions. I won't be able to take much time. I won't be able to take much time a lot. Okay. भैया हेलो। Yeah. एक्चुअली भैया चैट बॉक्स एंड Q&A टैब ना एक्चुअली एक्सेसिबल नहीं है, सो पीपल हैव टू अनम्यूट देमसेल्फ एंड देन आस्क द क्वेश्चंस। Okay. 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 So let's do one thing. Before unmuting, can they raise their hands, and then I'm gonna like do that thing. Uh,
Like, firstly, raise your hand if you want to ask any questions. Feel free to ask anything if someone has asked, and then I'm gonna unmute that person, and then you can talk. Okay, so रेज हैंड की क्यू बनती जा रही है, जल्दी जल्दी से चलेंगे, इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे. तो फर्स्ट पर्सन हु इज ज्ञान दीप्ता, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन प्लीज. अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क. भैया am I audible? यस. Am I audible? यस. तो भैया एक डाउट था कि चलो हमने बिल्कुल. पुल रिक्वेस्ट डाल दी, अगर वो अब हम्म. एक्सेप्ट ना हुई तो हम्म. दैट डज लाइक अभी हमें हैक्टोबरफेस्ट में आपने बोला कि हमें 4 से 5 पुल रिक्वेस्ट डालनी होती है, तो हाँ. अगर मेरी वो एक्सेप्ट नहीं हुई लेकिन उन्होंने मर्ज नहीं किया तो उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट? नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता. अच्छा. एंड ओके, देखो, यूजुअली क्या होता है, लाइक इफ वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ दिस हैक्टोबर फेस्ट हर साल अपनी गाइडलाइन चेंज करता है. लास्ट टू लास्ट ईयर फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मेरे ख्याल से लास्ट ईयर उन्होंने बोल दिया कि एक्सेप्ट होना जरूरी है. तो अगर एक्सेप्ट होना भी जरूरी है ना, तो व्हाट विल डू इज, आप ये जो रेपो है ना, मुकुल, लाइक मेरी अकाउंट पे जाना, github.com मुकुल कोड कोडिंग क्लब इंडिया. इस पर मतलब मैं 3-4 साल से कंटिन्यूअसली कर ही रहा हूँ, तो आपकी इस पे पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी, ये चीज़ समझ लो. इस पे पुल रिक्वेस्ट डाल देना अपनी स्टार्टिंग की इनिशियल 1, 2, 3 जो कुछ भी आपको ठीक लगे, वो एक्सेप्ट हो जाएंगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है. हैक्टोबर फेस्ट तो एटलीस्ट कंप्लीट करना ही है. हैक्टोबर फेस्ट के बाद में अपन लोग बाकी अच्छी-अच्छी पुल रिक्वेस्ट अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स पे डालेंगे सीखने के बाद, ठीक है? अच्छा ओके, भैया, थैंक यू. थैंक यू. ओके, नाउ यू कैन रेज, लाइक लोअर योर हैंड एंड यस, नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. भैया जैसे अगर हम नॉन कोड कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं एंड अगर हम रेज्यूमे में डालते हैं कि हैक्टोबर फेस्ट में पार्ट लिए एंड लाइक अगर हम टेक्निकल जॉब के लिए अप्लाई करें तो नॉन कोड कॉन्ट्रीब्यूशन से फिर डाउनग्रेड या कुछ ऐसे कुछ नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना? नहीं, देखो, नेगेटिव इफेक्ट कभी भी नहीं पड़ेगा, ठीक है? यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स, इट मीन्स कि बंदे को वीसीएस की नॉलेज है, बंदे को ओपन सोर्स के बारे में पता है, ठीक है? एक प्लस पॉइंट आपका ऐड हो रहा है. बट उस कंट्रीब्यूशन से आपको एक्स्ट्रा एज भी नहीं मिलेगा. जब आप कोडिंग प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो, दे वांट यू टू कोड, दे वांट टू लुक फॉर कोडिंग रिलेटेड स्टफ, ठीक है? सो दैट्स द रीजन कि मतलब बेसिक, आप ये तो नॉन कोडिंग वाला हो गया, ये तो बहुत बिगिनिंग है यार. जब आप आगे चलोगे तो कोडिंग वाले भी बहुत अच्छे-अच्छे कंट्रीब्यूशंस करोगे, और वो रिज्यूमे में देख के दुनिया को मजा आता है. जब मैं देखता हूँ ना, अच्छा ईसीपीसी में इसकी टीम गई थी, अच्छा ओपन सोर्स में ये कंट्रीब्यूशन है. एक बंदे ने अपने के रिज्यूमे में एक डॉक्यूमेंट डाला हुआ था जिसमें उसने अपने कमिट्स या फिर पुल रिक्वेस्ट डाली हुई थी. उसे देख के ही पता चल गया, मैंने उसकी पुल रिक्वेस्ट खोली भी नहीं. एंड आई वाज लाइक, ठीक है, ये बंदा गजब है, इसे रेफर कर देते हैं. दैट्स हाउ थिंग्स आर. ओपन सोर्स इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू. अगर वो नॉन टेक है तो वो आपको टेक्निकल राइटिंग वाली जॉब्स में हेल्प कर देगा, टेक है तो वो आपको कोडिंग वाली जॉब्स में हेल्प कर देगा. ओके, थैंक यू भैया. Okay, cool. Let's move on to the next person. Sujit Kumar, yeah, you can ask your stuff. यस भैया, मैं ये पूछ रहा था कि लाइक मैं इस टाइम मैं सोच रहा था एज अ मेंटेनर पार्टिसिपेट करूँ, तो क्या मेंटेनर्स को भी गिट मतलब वो स्वैग्स मिलते हैं क्या? यार मिलने तो चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब भी आप लॉग इन कर रहे हो उनके पेज पे, अक्टूबर फेस्ट के पेज पर, तो आपको हम्म ऑप्शंस आता है कि मेंटेनर की तरह करो या उसकी तरह करो. मतलब मुझे लगता है मिल जाने चाहिए. ना मिले तो नए आईडी से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, एंड वन मोर थिंग मुझे ये पूछना था, लाइक मुझे नेक्स्ट ईयर का जीसॉक मैं एम कर रहा हूँ, देन उसके हम्म. लिए मैं ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब लोग कहते हैं कि पहले से ही हम्म. ऑर्गेनाइजेशन हम्म. लोग कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही जुड़ जाओ तो आगे जीसॉक में मतलब क्रैक करना इजी रह जाता है, क्योंकि वो हम्म. तुम्हें टाइम टू टाइम रिव्यू कर रहे होते हैं. तो हम्म. लाइक ऑर्गेनाइजेशन को चूज कैसे करना है अक्टूबर फेस्ट से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो? ठीक है, हैक्टोबर फेस्ट से अपन लोग स्टार्ट कर सकते हैं. यू कैन सी लॉट ऑफ थिंग्स ओवर देयर, राइट? जैसे अगर मैं, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? यस यस. github.com स्लैश मुकुल कोड. जैसे अगर मैं अपनी पेज पर जाऊं, अपनी वेबसाइट पर जाऊं, तो यहाँ पर दो ऑर्गेनाइजेशन आ रही हैं, डीएससी एमएसआईटी, एक ओसी. ओसी एक जीसॉक की ऑर्गेनाइजेशन है, और डीएससी एमएसआईटी हमारे कॉलेज की ऑर्गेनाइजेशन है, जो काफी टाइम पहले क्रिएट की थी. तो ये तो आप बेसिक कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ से कर सकते हो, लेकिन आपको मेन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से फाइंड करनी है, तो आप जाओगे जीसॉक आर्काइव 2021, और यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाओगे,
और यहाँ पर आपको जिस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन चाहिए ना, वो आपको देखने को मिल जाएगी। मान लो आपको वेब के ऊपर काम करना आता है, एंड्रॉइड के ऊपर काम करना आता है, आपको हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगी। ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे मैंने काम किया था, ठीक है? ब्लेंडर बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपको इस पेज पे मिल जाएंगी। अगर आप जीसॉक स्पेसिफिक चीज़ करना चाहते हो ना, आप इस पेज पे आओ, summerofcode.withmoogle.com आर्काइव 2021 ऑर्गेनाइजेशन, 2020 की भी ऑर्गेनाइजेशन देख लो, 2019 की भी ऑर्गेनाइजेशन देख लो। जहाँ पर आपकी टेक्नोलॉजी मैच करती है, वहाँ पर कंट्रीब्यूट करना अभी से शुरू कर दो। उनके गिटर चैनल पे जॉइन हो जाओ, स्लैक चैनल पे जॉइन हो जाओ, ईमेल लिस्ट पे जॉइन हो जाओ, ताकि जो कुछ भी चेंजेस चल रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर, जो कुछ भी कम्युनिकेशन चल रहा है प्रोजेक्ट के अंदर, आपको वो सारी की सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है? जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, मैं ओसी खोलता हूँ, ओसी में यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर 2 चीजें हैं, ट्विटर और आईआरसी। आईआरसी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आईआरसी इज बेसिकली कम्युनिकेशन चैनल। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन दिख गया, यहाँ पर ये इनकी लॉबी है, गिटर.com। यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, ये इनके प्रोजेक्ट्स के नाम है। लॉबी में ज्वाइन करो और यहाँ पर आप लोगों से चैट कर सकते हो, इनके मेंटेनर से, कि भाई मैं नया बंदा हूँ यहाँ पे, मैं ओपन सोर्स शुरू कर रहा हूँ, बताओ कैसे करना है, ठीक है? यहाँ पर लोगों से आप बातचीत कर सकते हो। ऐसी और भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हो, एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड योर ऑर्गेनाइजेशन। ओके भैया, थैंक यू। ओके, कूल। And I'll be creating a complete video series और GSOC के ऊपर on my YouTube channel Tech with Mukul Code, तो वो चीज वहां पे मिल जाएगी, उसकी चिंता मत करो। Yes, next, Aman, your questions, dude. हेलो भैया, आई एम ऑडिबल? Yes, Aman. ओके भैया, आई वांटेड टू आस्क कि जैसे अगर हम कोई कंट्रीब्यूशन के लिए स्टार्ट करते हैं, तो भैया मैं ये पूछना चाहता था कि ऐसा तो नहीं है कि कई बार हम कोई कोड बेस जैसे किसी चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन का है, उसमें कुछ मैसअप कर दें, तो उसका भी कभी बार डर लगता है कि कुछ गड़बड़ ना कर दें हम उसमें। इसके लिए पता है क्या होता है, जैसे अभी अपन लोग ने पुल रिक्वेस्ट सबमिट करी है ना, डीएससी एमएसआईटी के ऊपर। अब डीएससी एमएसआईटी वाले लोग देखेंगे उस कोड को कि यार ये चीज ठीक है या फिर नहीं है, कहीं से कोड क्रैश तो नहीं कर जाएगा। अगर उन्हें ठीक लगती है तो वो मर्ज कर देंगे। अगर रिव्यूअर से कोई गलती हो गई, दे मेड अ बेसिक मिस्टेक और आपका कोड गलती से मर्ज हो गया, गलत कोड मर्ज हो गया, दैट्स वेयर वर्जन कंट्रोल सिस्टम इज गोइंग टू हेल्प। आप 3 क्लिक करोगे, आपका कोड वापस रिवर्ट हो जाएगा। मतलब आपका कोड पुश हो गया, कोड फट गया, प्रोजेक्ट खराब हो गया, लेकिन वर्जन कंट्रोल सिस्टम ने वर्जन मेंटेन कर रखे हैं ना। आप हिस्ट्री में जाओगे, 2-4 क्लिक करोगे, 1-2 गिट के कमांड्स रन करोगे, आपका प्रीवियस वर्जन रिस्टोर हो जाएगा और आपको जो रिव्यूअर है वो बता देगा कि यार आपके कोड ने फाड़ दिया है हमारे कोड को, तो इसमें ये चीजें, ये चेंजेस करो और फिर से पुल रिक्वेस्ट सबमिट करो। तो डरने की कोई बात नहीं है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम बना ही इसलिए है। तो भैया ऐसा तो नहीं है कि वो हमें दोबारा कंट्रीब्यूट करने से मना कर दें? नहीं, 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 अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये चीज कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने 50-50 ट्रैश कंट्रीब्यूशंस किए हैं कि ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। उन्हें चाहिए भी नहीं थे वो कंट्रीब्यूशन, फिर भी मैं पुल रिक्वेस्ट रेज़ कर रहा था, लेकिन कभी कुछ नहीं होता ऐसा। इनफैक्ट दे विल सी कि यार बंदे की ओके। पहली पुल रिक्वेस्ट ऐसी थी और अब ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इस बंदे ने इतना ग्रो किया है। ओके, नाइस भैया। भैया एक चीज़ और पूछनी थी कि जो जीसॉक होता है उसके लिए प्रपोजल किससे रिव्यू करवाते हैं, या किसी मेरे कोई ऐसा मेंटर मिल जाता है ऑर्गेनाइजेशन में? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेंटर्स होते हैं ना, वो मेन बंदे हैं रिव्यू कराने वाले। बाकी एक्स जी सॉकर हो गए, बहुत दुनिया रिव्यू कर देगी, मैं भी रिव्यू कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के मेंटर से रिव्यू कराने से बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उन्हें ज्यादा नॉलेज होती है उन प्रोजेक्ट्स की। ओके, थैंक्स भैया। कूल, 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 थैंक यू अमन। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पर्सन, रजनीश। हेलो भैया, एम आई ऑडिबल? यस, हाय रजनीश, यू आर ऑडिबल। हेलो मुकुल भैया। रजनीश सर, भैया मुझे ये पूछना था कि क्या चेंजेस बनाने हैं कोड में, प्रोजेक्ट्स में? क्या ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होगा या फिर हम कोई भी चेंजेस बना सकते हैं? क्योंकि पीआर तभी एक्सेप्ट होगा जो कि जब उनके मन मुताबिक काम होगा, या फिर जो उन्होंने डॉक्यूमेंट किया होगा वो हम करके देंगे। तो हाउ कुड वी नो दैट? काफी 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 मस्त क्वेश्चन, ठीक है? तो जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन खोल लेता हूँ कोई, और मैं कोई प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ, ये मैंने प्रोजेक्ट खोल लिया है। प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर तो हमें नहीं दिख रहा है। इन प्रोजेक्ट्स को मुझे लगता है ये लोग मेंटेन नहीं करते। तो प्रोजेक्ट्स के अंदर है ना, आपको एक सेक्शन मिल जाएगा इश्यूज का, ठीक है? वहां पर इश्यूज होंगे जहां पर आपको प्रॉपर से दिख जाएगा कि यार इसके प्रोजेक्ट के अंदर है ना, ये इतने सारे इश्यूज हैं। जब आप वो उन इश्यूज को देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार इनमें से कोई इशू आप सॉल्व कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो।
अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आप उस इशू के अगेंस्ट एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप जो चीज़ करना चाहते हो वो इश्यूज़ में प्रेज़ेंट नहीं है, तब आप क्या करना, अच्छा ये तो रहा यार इश्यूज़ का ऑप्शन। ये तो मेरे इश्यूज़ हैं, मतलब जैसे एक इश्यू ये हो गया, एक ये कुछ इश्यू हो गया। अगर आपको लगता है कि आप जो चीज़ करना चाहते हो वो पहले से प्रेज़ेंट नहीं है, तो आप एक इश्यू क्रिएट कर दो, वहाँ पर लेबल लगा दो कि ये फीचर रिक्वेस्ट है या फिर एक नई इम्प्रूवमेंट है या फिर कोई आपके प्रोजेक्ट के अंदर बग था वो है, उस चीज़ को मैं सॉल्व कर रहा हूँ एंड देन यू कैन रेज़ अ रिक्वेस्ट आफ्टर गेटिंग अप्रूवल ऑन दैट इश्यू। भैया लास्ट ईयर मैंने स्केलर में किया था, मतलब हैकेथॉन में पार्टिसिपेट, तो वहाँ भी जो ऐसा ही सेक्शन था, मतलब प्रोजेक्ट्स थे, वहाँ पे इशू सेक्शन में जाकर के ये प्रॉपर पीपीटी वगैरह बना के सबमिट करना था और इशूज़ में तुमको बताना था क्या क्या इशू रिजॉल्व किया, कैसे क्या क्या प्रोसेस वगैरह सब कुछ, और देन दे एक्सेप्ट योर इशू, मीन्स वट एवर यू हैव सॉल्व। सो थैंक यू वेरी मच भैया। और एक क्वेश्चन और था भैया, मीन्स इफ आई हैव एनी डाउट देन वेयर कुड आई आस्क दोस डाउट, मीन्स टेलीग्राम चैनल पे तो हम कुछ भी पूछ नहीं सकते, तो अरे मैं इफ मंथली 3 लाइव करता हूँ यूट्यूब पर, सो इट्स लाइक ओके सिमिलर जो अभी हम कर रहे हैं, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस ओवर देयर एंड अपन लोग वहाँ पे बात कर सकते हैं। भैया इफ यू कुड मेक एनी डिस्कॉर्ड चैनल दिस विल मोर हेल्पफुल फॉर अस। ओके, नोटेड। ट्राई करते हैं, डिस्कॉर्ड मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ ट्राई या करता हूँ, ठीक है? चलो ट्राई करते हैं, या लिख लेता हूँ। ओके हेलो, हाय, नेक्स्ट पर्सन। ओके हाय, हेलो छवि दीदी। हाय मुकुल, भैया। सो बेसिकली मेरा ये क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड गुड प्रोजेक्ट लाइक एवरेज प्रोजेक्ट स्टार्टर्स के लिए, ओके, लाइक कौन से ओके, प्रोग्राम कर सकते हैं कंट्रीब्यूट। ओके। सो whoever don't know, Chavi is my senior and she's working at Adobe. And thank you so much for joining in. Firstly, and talking about the next part, which is how to find projects. Okay. So the thing over here is there are a couple of open source programs through which we can get started. The first one, like अपन लोग को है ना, मतलब मैंने जो चीज देखी है, हम randomly प्रोजेक्ट सर्च कर सकते हैं दुनिया भर में, वो सब चीजें अपन को मिलती हैं कि मुझे एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट आता है तो हम वहां सर्च कर सकते हैं। बट उससे अच्छी अप्रोच पता है क्या रहती है कि हम ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, इनके प्रोजेक्ट्स को देखें। जैसे हर साल गर्ल्स ट्रिप समर ऑफ कोड होता है, इसमें काफ़ी बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट्स होते हैं। हम रजिस्टर वगैरह कर सकते हैं, बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है एंड देन विल बी एबल टू सी द प्रोजेक्ट्स और वहाँ पर बहुत आराम से कंट्रीब्यूशंस कर सकते हैं। मैंने गर्ल्स ट्रिप समर ऑफ कोड में कंट्रीब्यूशंस किए ही इसलिए थे क्योंकि वहाँ पर बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट्स थे, बेसिक टिक टैक टो टाइप की गेम्स थी, उसके बाद में थोड़े एडवांस लेवल प्रोजेक्ट्स थे जहाँ पे अच्छे-अच्छे लोगों ने मेंटर कर दी थी। अगर हमें लगता है कि यार हमें थोड़ा आता है तो हम लोग वहाँ पे मेंटर भी कर सकते हैं, ठीक है? गूगल सीन ऑफ डॉग बेकार है, ये रेल्स जीसॉक से ये होता है, फोस्टेशिया कोड हिट से ये होता है और गूगल समर ऑफ कोड के अंदर तो हमें काफ़ी अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स मिल ही जाते हैं। तो जैसे अपन लोग अगर मतलब वापस से फिर से आर्काइव के ऊपर जाएँ, तो यहाँ पर हमें ऑर्गनाइज़ेशंस तो हमें यहाँ पर दिख रही हैं, लेकिन एक ऑप्शंस होता है यार प्रोजेक्ट्स देखने का। हुँ, हुँ। लाइक मेरे को कल ना ये स्पेसिफिकली हैक अक्टूबर के बारे में जानना था कि मतलब लाइक उसमें कुछ आप फिल्टर आउट करने को बता सकते हो। ओके, सो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम हैकटोबर 2022 प्रोजेक्ट्स और इसके अंदर क्या होगा, हैकटोबर फेस्ट ने है ना यहाँ पर कहीं पर लिस्टिंग की होगी अपने प्रोजेक्ट्स की, जो-जो ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर नहीं होगा तो कहीं न कहीं तो होगा ही। ठीक है। और मतलब जैसे अगर हम हैकटोबर फेस्ट 2022 सर्च करें ना, तो हम ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर लैंड कर जाएँगे जिनके ऊपर ये हैकटोबर फेस्ट का वो होगा, क्या बोलते हैं, टैग्स होंगे। तो हम्म। मतलब वो अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए और वो हैकटोबर फेस्ट के अंदर काउंट भी होते हैं। सो व्हाटएवर टेक्नोलॉजी वी लाइक, वी कैन गो विद दैट। We can search like Hacktoberfest 2022 Android projects. We can search like Hacktoberfest 2022 Web Node.js या फिर React या जो कुछ भी अपन को सर्च करना है उस हिसाब से एंड विल बी एबल टू लाइक ये जो टैग्स हैं वो बेसिकली इसीलिए हैं ताकि हम गूगल सर्च के थ्रू इस प्रोजेक्ट तक पहुंच सके। तो हम उस तरीके से सर्च करके यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दीदी ज्वाइन करने के लिए। ओके, लेट्स मूव ऑनवर्ड्स टू प्रथम। या
हेलो भैया। हेलो, हाय प्रथम। एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे जैसे मैंने अभी जीसॉप की एक ऑर्गेनाइजेशन पकड़ के कंट्रीब्यूशन स्टार्ट किया है, तो ठीक है। बेसिकली क्या है कि जैसे दोनों ओपन सोर्स और अभी मैं दोनों लीड कोड पे कर रहा हूँ, तो ऐसे कौन कौन से ओपन सोर्स प्रोग्राम है जो अच्छे हों और रेज्यूमे में रिफ्लेक्ट करें उसके लीड कोड के साथ साथ, क्योंकि उस पर प्रैक्टिस करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। ठीक है, अल्टीमेटली लीड कोड, एएसए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट्स समथिंग दैट्स गोना गेट यू अ जॉब। ठीक है, यस। मोस्ट ऑफ द चांसेस आपके इंटरव्यूज वगैरह इन सारी चीजों के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं, अगर आपका रिज्यूमे भी सिलेक्ट हो जाता है तो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट्स लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बट टॉकिंग अबाउट कि यार हमें जीसॉक वाली चीज या फिर ओपन सोर्स वाली चीज ये किस तरीके से मैनेज करनी है, आप है ना क्या करो, पहले कोई भी एक नॉर्मल सी टेक्नोलॉजी सीख लो, कैन बी एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा टाइम देके स्पेंड कर करके एक चीज को सीख लो। जब आप उसमें थोड़े से अच्छे हो जाओगे, देन यू कैन डू बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली। यार लीड कोड पे अपनी प्रैक्टिस चल रही है, लगातार कोड 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 कर रहे हैं अपन लोग, लेकिन जो पहले मैंने एंड्रॉइड या फिर वेब जो सीखा है थोड़ा सा, I can contribute like onto the small pieces into different projects कि यार मेन जो चीज है ना, एक चीज को आप मेन स्ट्रीम बनाओ, लेट इट बी लीड कोड और ओपन सोर्स। माय प्रेफरेंस इज लीड कोड करो। लीड कोड मतलब मैं डायरेक्टली लीड कोड नहीं बोल रहा, माय प्रेफरेंस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को अपना मेन मोटिव बनाओ और साइड में इस चीज को करते रहो धीरे धीरे, आराम आराम से, ऐसे कुछ स्पेसिफिक टाइमलाइन लेने की जरूरत नहीं है, बट टू डू दैट थिंग यू शुड नो समथिंग कि यार थोड़ी सी एक लैंग्वेज आती है या पाइथन में कुछ किया हुआ है या फिर थोड़ा सा किसी डेवलपमेंट में हाथ पैर मारे होने चाहिए, तब आप ये चीज दोनों दोनों साथ में कर सकते हो। इन माय सिनेरियो व्हाट आई डू इज आई स्पेंड लाइक मोस्ट ऑफ माय टाइम ऑन माय ऑफिस, और कभी कभी थोड़ा थोड़ा, मतलब ऑफिस में मैं अभी एंड्रॉइड डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एंड्रॉइड डेवलपमेंट मैंने काफी टाइम पहले की थी, तो ऑफिस में का काम करता हूँ, फ्री टाइम में थोड़ा बहुत एंड्रॉइड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स उठा लेता हूँ। दैट्स हाउ आई डू इट। And lead code is going to be your main thing. Spend small amount of time on to open source. नहीं, जैसे मेरे को ये था कि जैसे एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रखी है मैंने, तो उसमें इंटर्नशिप भी कर रखी है, तो वो थोड़ा इजी है पहले मेरे लिए, क्योंकि वो हो रखा, तो उसमें मैं धीरे धीरे डे बाय डे कंट्रीब्यूशन कर देता हूँ हर एक दो दिन में, तो उतना इनफ होगा कि एक जीसॉक कर लूँ और लीड कोड को लेके चलूँ मैं, बस उतना इनफ होगा क्या एक रेज्यूमे के लिए? इतना इनफ होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनफैक्ट पता है, मैं आपको मेन चीज बताऊं, रिज्यूमे में आपको हाईलाइट करने के लिए अगर आपके पास 3 एक्सेप्टेड पुल रिक्वेस्ट भी है ना, वो भी आपके रिज्यूमे को साइड में कर सकते हैं बाकी दुनिया की भीड़ से। नहीं ठीक तो है, फिर तो यार उससे बहुत ज्यादा है। हाँ 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 तो मतलब लोग क्या करते हैं, 3 लिंक डाल देते हैं, 4 लिंक्स डाल देते हैं, वो भी चीज चल जाती है, लेकिन जो अच्छे होते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम डाल देते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट किया है, इस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट किया है, या फिर जो इससे भी अच्छे होते हैं वो क्या करते हैं, गूगल डॉक का लिंक डाल देते हैं, उसके अंदर अपने सारे कमिट्स के लिंक डाल देते हैं पुल रिक्वेस्ट के, कि भाई ये सारे कमिट्स पुल रिक्वेस्ट है मेरी जो एक्सेप्ट हो रखी हैं, ये रिव्यू के अंदर है, ये इश्यूज मैंने रेज किए हैं, जिसे जो देखना है देख लो। सो अल्टीमेटली अगर किसी को डीप में जाना होगा, मतलब कंपनीज जो है ना, गोजेक हो गई, जोमेटो हो गई, जो भी स्टार्टअप्स हैं, क्रेड भी हो गई, इनके रिक्रूटर्स को बोला जाता है स्पेसिफिकली डिमांड देके कि हमें ऐसे बंदे चाहिए जिन्होंने इतने कमिट्स कर रखे हों, जिनकी गिटहब प्रोफाइल अच्छी हो। ठीक है, एंड दैट्स हाउ दे पीपल आर गोइंग टू फाइंड यू। मतलब आप अपनी चीज सेट रखो, वो ढूंढने वाले लोग आपको ढूंढ लेंगे, उसकी चिंता मत करो। तो बाकी मतलब आपके मेरे को एक गूगल डॉक भी साइड बाय साइड बना लेनी चाहिए अपनी पीआरस की, जो हाँ मर्ज हाँ हुई भी, जो मर्ज हुई है एक्चुअल हाँ, में। जो मर्ज हुई हैं वो भी, जो करंट रिव्यू में है वो भी, जो कैंसिल हो गई हैं, क्लोज हो गई हैं वो भी, जो कुछ भी हो, आपने एफर्ट्स तो डाले हैं ना, वो चीज एक्सेप्ट हुई हो ना हुई हो वो मैटर नहीं करता। ओके भैया, थैंक यू भैया। ओके, थैंक यू। लेट्स मूव ऑन टू अमन। ने हाथ अभी भी खड़ा किया हुआ है, यस अमन, डू यू हैव समथिंग टू आस्क? ओके, अमन टॉप हिज हैंड, so what is Okay, Aman I think we basically? have had enough amount of questions, and I would like to thank Mukul Bhaiya for taking up this session and delivering valuable content to my community. And apart from that, this collaboration with IEEE was great, and we have, I guess, delivered a lot amount of and valuable content to the students. And hope everyone will be participating in Hacktoberfest and following open source programs.
So I think this event has been managed in an efficient manner, and I would like to have some points on that from your end as well. Okay. It was again great to see DSC alive, firstly. Thank you so much, Kavya, for like organizing all those things. Apart from that, every single person was involved in it. Great stuff, man. Like you guys are doing great stuff over here. अच्छा लगता है कॉलेज के लोगों से इंटरेक्ट करके, ठीक है, काफी अच्छा लगा, काफी सारे नए नए लोगों को ज्वाइन होता देख, काफी सारे नए नाम देखकर, क्योंकि पुराने नाम सेम ग्रुप्स के अंदर देख देख के मैं थोड़ा सा थक गया था। गुड टू सी न्यू पीपल गेटिंग इनटू ओपन सोर्स। हैकटोबर फेस्ट में मचाओ भाई, टी-शर्ट वी-शर्ट लो, अपना ओपन सोर्स की जर्नी शुरू करो, कोडिंग करो, कुछ मतलब कुछ डिफरेंट करो जो दुनिया नहीं कर रही, ठीक है। हैकटोबर फेस्ट करके टी-शर्ट लेके घर पे बैठने से कुछ नहीं बनेगा, कुछ आगे कंट्रीब्यूशंस वगैरह करो। एंड अगेन थैंक यू सो मच IEEE, DSC एंड एवरी सिंगल पर्सन हु वाज इन्वॉल्वड इन इट, every single person who was coordinating with me, bearing my late replies. I remember someone messaged me on 21st and I replied after 5 days. Sorry for that. And yeah, thank you so much, everyone. Apart Thank from you that, so I much, would like Priya. to apart from that, I would like to tell each one of you that it's not just about Hacktoberfest. You can follow up on other open source programs as well. I'm myself an outreachy applicant, and yeah, I've contributed to public labs, and you get a great exposure. And soon I'll be looking forward to take part in Google Summer of Code as well. So I think open source just makes your personal and professional growth anyways. You will be like confident about making contributions and collaborating with people. You will be able to understand their codes, and yeah, you can initially start with some documentation. And my first program was Girls Script Summer of some Girls Script Winter of Contribution, and I contributed into some documentations and some basic codes. So yeah, your journey would have will have a great kickstart, and this was a session to have you onboarded on the open source journey. So looking forward to have each one of you in the open source programs and meet you someday, making some contributions and mentoring you anyways. So you all can drop any messages or any doubts through any social media handles of Mukulvia, or you can drop me personally. I'll help you connect with him. And yeah, thank you so much for taking up this session, and we are great to have you as a senior and as a mentor. And that was all from our end. Thank you so much, means a lot. Thank you everyone. Thank you so much for joining in. काफी सारा टाइम ले लिया आपका. Thank you, yeah. And like I would like to end with the last thing. May the source be with you. Okay, everyone is free to leave the session, and that was all from our end. I'm looking forward to have you in the further sessions as well.